اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن کی جانب سے اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں میں عمیر لودھی اور میرے ساتھ موجود ہیں کرینہ ناز، جبران خان، عبدالعزیز، اور ہم سب کی طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ تو کرینہ ناز، ایز یوزول آپ بڑھائیں گے ہمارا پروگرام ایجنڈا کے ساتھ؟ جی بالکل۔ آج کا ہمارا ایجنڈا ہے سب سے پہلے حمد سید طاہر حسین مانی کی آواز میں، پھر انٹرویو ہوگا عمران اسماعیل کا جو کہ تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ آف سندھ کے جو تحریک انصاف کے ہیں اور پریزیڈنٹ آف سندھ ہیں، تحریک انصاف سے ان کا پھر تعلق انٹرویو ہے۔ ہوگا مشاہد اللہ خان کا، سینیٹر مشاہد اللہ خان کا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر مشاہد اللہ خان کا۔ اور کرینہ، میرے خیال سے آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی ہماری لائنز کے بارے میں۔ جی بالکل، آج اب ہماری لائنز اوپن ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر یہ ہے 773-792-1240۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں 773-792-1240۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.overseaspakistanis.organization، اینڈ ہمارا ای میل ایڈریس ہے chicago@overseaspakistanis.org، اور ہمارا آرگنائزیشن کا ٹیلی فون نمبر ہے 773-969-7672۔ آپ کے پاس کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں، امیگریشن یا کسی اور سلسلے میں، بزنس کو افورڈ کرنا، اپنے ہمیں کال کیجیے، ہمیں ای میل کیجیے، ہماری ویب سائٹ پہ آ کے ہماری سروسز کو چیک آؤٹ کیجیے، اور ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں لیکن فری۔ Oh, yeah, exactly, absolutely free. Forgot that part. چلیں اس کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں سید طاہر حسین مانی کی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی، نگاہوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی۔ میریٹ ہوٹل اسلام آباد کی چھت سے ڈرون طیاروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ عمیر لودھی، پاکستان کو 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر۔ ڈاکٹر فاروق ستار، اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری۔ آرٹیکل 6 میثاق جمہوریت میں یہ پوائنٹ موجود تھا۔ عبدالعزیز، افسوس ہے مسٹر آصف علی زرداری پہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो अपनी माँ को भी पेस्तों पे भेज देते हैं, तो इस्लाम में इनकी क्या गुंजाइश है? और इस इलाके के लोग अब तक पाकिस्तान का सबसे गंदा तरीन पानी पी रहे हैं। इमरान खान कुछ हम लोग जायज हैं, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है। कोई तो है जो निजाम बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपको मालूमात ही नहीं है इस बारे में और आपको बिल्कुल भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, सॉरी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, लेकिन बोलना है या नहीं बोलना है? मोहतरमा शहीद के केस को यूं लगता है कि कोई इदारा इस पर काम ही नहीं कर रहा। करीना नाज। Join us every Tuesday हर मंगल की शब from 11 to 12 स्टेज हमारा, सियासत तुम्हारी on 12:40 a.m. Brought to you by Overseas Pakistanis Organization. कराची के चारों तरफ लैंड माफिया का राज है। ये आपने किसने कहा? जो हमारे वोटर हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, ये लोग इस हुकूमत को नाकाम बनाने की इनडायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व है, हम जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे। मोहतरमा शहीद के केस को यूं लगता है कि कोई इदारा इस पर काम ही नहीं कर रहा। अगर इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, दुनिया के अंदर क्या उसके असरात होंगे? स्टेज हमारा, सियासत तुम्हारी। और सबसे बड़ा इशू ये कराची में ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑफ पीपल पार्टी पर मुश्तमिल जो हुकूमत है, इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। जो बेसिकली जो अपने आप को जो है शेर की वारस समझती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जब तक आपको इस फरसूदा निज़ाम का खात्मा नहीं होगा, कराची के अंदर ना अमन आ सकता है और ना कराची के मसाइल हल हो सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हालात को साजगार बनाने में और पुरअमन करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मैं समझता हूँ यहाँ के हालात साजगार नहीं हो सकते। ये था ऐड हमारा नेक्स्ट वीक के लिए नफीस सिद्दीकी साहब का, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ पीपीपी सूबे सिंध से इनका ताल्लुक़ है, और ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह चला रहे के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बिल्कुल वही बताया मैंने। और एक और इनके साथ हम लोगों ने खास इंटरव्यू चलाएंगे नेक्स्ट वीक। इमरान इस्माइल साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ के, जिनका अभी इंटरव्यू चलने जा रहा है। अभी हम लोग जो पहला इंटरव्यू चल रहा है हमारा, वह है इमरान इस्माइल साहब का। इनका पोर्टफोलियो बताइए क्या है? ये सूबे सिंध के सदर हैं। हमारे पास तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हम दो ही आदमी लेते हैं हर पार्टी से, सदर और कराची का सदर, प्रोविंशियल सदर। प्रोविंशियल, यस। ओके। तो ये बेबाक लीडर भी हैं, स्टूडेंट लाइफ भी इनकी इसी तरह की कुछ है। और ये पार्टी चीफ जस्टिस की बहाली में ये मुस्लिम लीग, नवाज़ और जमात इस्लामी, ये तीनों बहुत अच्छा रोल अदा किया था इन लोगों ने, और अपनी स्ट्रेंथ भी शो की थी हर जगह। ये कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में इनके लोग नज़र आते थे। और ये तहरीक इंसाफ जो है ये इमरान खान की पार्टी है, चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। सही। चलें आए सुनते हैं इंटरव्यू ऑफ इमरान इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सामीन, हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब, सदर सूबे सिंध तहरीक इंसाफ, कराची से लाइन पर हैं। और माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता कराची से हैं या कहाँ से हैं, बहरहाल चूँकि ये सेल पर हैं तो जी कराची से हैं। उन्होंने बताया ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के रेडियो प्रोग्राम स्टेज हमारा, सियासत तुम्हारी में आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सवाल आपसे ये है, आपकी पार्टी जमात इस्लामी और बहुत सारी तंजीमों ने चीफ जस्टिस की बहाली में भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन इस बहाली की मूव को एक पार्टी ने फैसला करके तय कर डाला। इस अमल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया हमारी बातों को अमेरिका में एड्रेस करने का। और जो सवाल आपने किया है तक उसका मैं आपको बताऊं कि ये हमने एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से ये तहरीक चलाई पाकिस्तान में, और बड़ी कोशिश की हमारी सारी जमातों की, मैं कहूँगा कोशिश इसमें रही कि हम किसी तरह पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद कराएं, ताकि अपने ऊपर कोई क्रेडिट लेने के उसके सिलसिले में। लेकिन आपने देखा कि आखिर में जो आके लाहौर के अंदर जिस तरह से चीज़ों को किया गया और अर्जेंटली और हैफेजली उसको निपटाया गया चीज़ों को, उसमें आपके सामने नुमाया है एक जमात का किरदार जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप नाम देते हैं।
کہ انہوں نے بہت جلدی میں بہت کسی ریئل ہیٹ کے اندر انہوں نے فیصلے کیے اور بغیر اتحادیوں کو، جماعت اسلامی کو اور تحریک انصاف کو جو میجر اتحادی